ایک تقریب کی تیاری کرو اور تمام شہزادیوں کو بلاوا بھیجو، جس سے شہزادہ ایان پسند کرے گا اس سے اس کی شادی ہوگی۔ بادشاہ سلطان کے بیٹے شہزادہ ایان کی شادی، وہ بھی ایک بھکارن سے۔ جب اس امیر شہزادے نے نکاح کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کوئی شہزادی نہیں بلکہ سڑک کی ایک بھکارن تھی، اور اس وقت سب لوگ ہنس رہے تھے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھکارن انسان ہی نہیں تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم بادشاہ سلطان ظفر کی، جس کی حکومت صرف ایک شہر یا ایک علاقے تک محدود نہیں تھی، بلکہ عرب کے شہر شام سے لے کر دور دراز ریگستانوں، سرسبز وادیوں اور تجارتی راستوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دربار میں انصاف اس طرح قائم تھا کہ اگر ایک عام آدمی بھی فریاد لے کر آتا تو سلطان خود اس کی بات سنتا۔ اس کے فیصلے سخت ضرور ہوتے مگر ہمیشہ حق پر مبنی ہوتے تھے۔ محل سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، اونچے ستون، سنہری دروازے اور خوشبوؤں سے مہکتی فضا، مگر ان سب کے باوجود سلطان کے دل میں ایک خلا تھا، اور وہ خلا تھا اس کے بیٹے کی شادی۔ سلطان ظفر کا اکلوتا بیٹا شہزادہ ایان۔ ایان دوسروں شہزادوں کی طرح غرور اور تکبر سے بھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ اکثر محل کی بلندیوں سے نیچے عام لوگوں کو دیکھتا اور سوچتا، یہ لوگ بھی میری طرح انسان ہیں، پھر ان کی زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ وہ چھپ کر غریبوں کی مدد کرتا اور کبھی کسی کو اپنے بارے میں بتاتا بھی نہیں تھا۔ جب ایان جوان ہوا تو پورے عرب میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ ہر روز محل میں نئی نئی شہزادیوں کی تصویریں آتیں۔ کسی کی آنکھیں خوبصورت تھیں، کسی کا لباس شاہانہ، کسی کا خاندان بہت بڑا، مگر ہر بار ایان تصویر دیکھ کر خاموشی سے کہہ دیتا، یہ نہیں۔ سلطان ظفر پریشان ہونے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا عام نہیں، اس کی سوچ بھی عام نہیں۔ آخرکار کئی دنوں کی سوچ بچار اور بے چینی کے بعد سلطان ظفر نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے شاہی دربار میں اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا، اونچے ستونوں والا وسیع ہال سنہری جھار فانوسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ درباری اپنی اپنی جگہ مؤدب کھڑے تھے، اور فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سلطان ظفر کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ کو تول رہا ہو، پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر بلند کیا اور ایک پروقار گونجتی ہوئی آواز میں کہا، ہم نے بہت سوچا ہے۔ یہ سنتے ہی پورا دربار خاموش ہو گیا، ہر آنکھ بادشاہ کی طرف اٹھ گئی۔ سلطان نے اپنی نگاہیں پورے دربار پر دوڑائیں، پھر مضبوط لہجے میں اعلان کیا، ایک تقریب کی تیاری کرو اور تمام شہزادیوں کو بلاوا بھیجو، جس سے شہزادہ ایان پسند کرے گا اس سے اس کی شادی ہوگی۔ ایک عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا جائے گا، ایسی تقریب جو آج تک اس سلطنت میں کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سلطان نے بات جاری رکھی، اس تقریب میں دور دراز کی تمام ریاستوں کی شہزادیاں مدعو کی جائیں گی، ہر وہ شہزادی جو حسن، عقل اور خاندان میں اعلیٰ ہو۔ اب فضا میں ہلچل بڑھ گئی تھی، سب جان گئے تھے کہ یہ اعلان کس لیے ہو رہا ہے۔ سلطان ظفر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے خاموشی قائم کی اور پھر نہایت مضبوط فیصلہ کن انداز میں کہا، اور میرا بیٹا شہزادہ ایان انہی سب کے درمیان خود اپنی دلہن کا انتخاب کرے گا۔ یہ الفاظ دربار میں گونج اٹھے۔ کچھ درباریوں کے چہروں پر خوشی تھی، کچھ حیران تھے، اور کچھ کے دلوں میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، تیاریوں کا آغاز فوراً کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تقریب ہماری سلطنت کی شان کے مطابق ہو، تاکہ دنیا دیکھے کہ سلطان ظفر اپنے وارث کے لیے کیسی دلہن کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان خاموش ہو گیا، مگر اس کے الفاظ کی گونج ابھی تک دربار کی دیواروں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے سے پورے محل میں ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی۔ خدام دوڑنے لگے، پیغامات بھیجے جانے لگے، اور ایک ایسی تقریب کی تیاری شروع ہو گئی جو آنے والے وقت میں سب کچھ بدلنے والی تھی۔ پورا شاہی محل اس دن کسی عام جگہ کی طرح نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین پر واقعی جنت کا کوئی ٹکڑا اتر آیا ہو۔
ऊंचे ऊंचे सुनहरी सुतूनों को निहायत बारीक नक्शो निगार से सजाया गया था। दीवारों पर कीमती कालीन और रेशमी पर्दे आवेजा थे जो हवा के हल्के झोंकों से आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। हर तरफ सुनहरी चिराग रोशन थे जिनकी नर्म और गर्म रोशनी पूरे महल को एक जादुई हुस्न दे रही थी। महसूस होता था जैसे हर सांस के साथ खुशबू दिल में उतर रही हो। महल के मरकजी सहन में एक वसी हाल तैयार किया गया था जहां सुर्ख और सुनहरी कालीन बिछे हुए थे और उनके किनारों पर मोतियों और कीमती पत्थरों की झलक नुमाया थी। इसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलने लगे और दूर दूर से आने वाली रियासतों की शाही सवारियों की आमद शुरू हो गई। हर सवारी के साथ मुहाफिज, नौकर और शाही प्रोटोकॉल मौजूद था और हर काफिले से एक नई शहजादी अंदर दाखिल हो रही थी। कोई सुनहरी लिबास में मलबूस थी, किसी के जेवरात रोशनी में चमक रहे थे, किसी के चेहरे पर एतमाद और गुरूर था। हर शहजादी अपने हुस्न, वकार और शाही शान में बेमिसाल दिखाई दे रही थी, जैसे पूरी दुनिया की खूबसूरती एक जगह जमा हो गई हो। लोग सरगोशियों में कह रहे थे, ऐसी महफिल पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन उस सब के बावजूद महल के एक कोने में एक खामोशी भी मौजूद थी, जैसे कुछ आने वाला है जो उस खूबसूरती के पीछे छुपा हुआ है। मगर जब वो अजीमुशान तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची तो महल की फजा अचानक बदल सी गई। जहां कुछ देर पहले हंसी, चिरागों की रोशनी और लोगों की सरगोशियां गूंज रही थीं, वहां अब एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी, जैसे पूरा महल किसी अनजान उदासी की गिरफ्त में आ गया हो। शहजादा अयान वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर वही सुकून था, मगर आंखों की चमक कहीं के खो चुकी थी। न खुशी थी न हैरत, सिर्फ एक गहरी खामोश सी उदासी जो दिल के अंदर उतरती जा रही थी। वो लम्हा भर के लिए रुका। उसने आहिस्ता से निगाहें नीची की, जैसे वो खुद से ही कोई सवाल कर रहा हो, मगर जवाब कहीं नहीं था। फिर बगैर कुछ कहे वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ महल के बुलंद दरवाजों की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज सुनसान हाल में गूंज रही थी, जैसे हर कदम के साथ एक फैसला उसके अंदर मजीद मजबूत हो रहा हो। वो न किसी से मिला, न किसी की तरफ देखा। बस यूं लग रहा था जैसे वो उस हुजूम से नहीं बल्कि अपनी ही सोचों से दूर जा रहा हो। महल के दरवाजे से बाहर निकलते हुए हवा का एक हल्का सा झोंका उसके चेहरे से टकराया, मगर वो नहीं रुका। वो चलता रहा, जैसे वो किसी ऐसी चीज की तलाश में हो जिसे ना ये महल दे सका, ना ये हुजूम, ना ये सारी शहजादियां। कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके दिल को मुकम्मल कर सके, और वो खुद भी नहीं जानता था कि वो चीज आखिर है क्या। रात के सन्नाटे में जब ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों से टकराती हुई गुजर रही थी और हर तरफ एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी, शहजादा अयान महल से कुछ फासले पर एक सुनसान और मध्यम रोशनी वाले रास्ते पर अकेला चल रहा था। उसके कदम आहिस्ता थे और जहन किसी गहरी सोच में गुम था। तभी अचानक उसकी नजर सामने एक अजीब मंजर पर जम गई। एक लड़की फटे पुराने मिट्टी से भरे हुए कपड़ों में जमीन पर खामोश बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गर्दो गुबार से ढका हुआ था, मगर उन सब के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और सुकून था, जैसे वो अपनी हालत से नहीं किसी अंदरूनी यकीन से जुड़ी हुई हो। शहजादा अयान चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गया और बगैर जाने क्यों उसकी नजर उस लड़की से हट नहीं रही थी। इसी लम्हे एक रागीर ने उस लड़की के सामने एक सादा सी रोटी रख दी। लड़की ने वो रोटी अपने कांपते हाथों में उठाई और कुछ देर उसे खामोशी से देखती रही। इतने में एक कमजोर भूखा कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसकी आंखों में भूख और उम्मीद दोनों साफ झलक रही थीं। लड़की ने एक लम्हा भी तवक्कुफ नहीं किया, न कोई तरद्दुद, न कोई सोच। उसने वही रोटी आहिस्ता से उस कुत्ते के आगे रख दी और खुद खामोशी से उसे देखने लगी। अयान के दिल में कुछ टूटा और कुछ बन गया। वो उसके पास आया और बोला, तुमने अपनी आखिरी रोटी भी दे दी। लड़की ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं भूखी हूं तो अल्लाह मुझे खुला देगा, मगर अगर ये मर गया तो उसका कोई नहीं। ये अल्फाज अयान के दिल में तीर की तरह उतर गए। अगले दिन
जब सूरज अपनी नर्म सुनहरी रोशनी के साथ रेगिस्तान पर फैल रहा था, शहजादा अयान दोबारा इसी सुनसान रास्ते पर आ गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो वहां क्यों आता है, बस दिल उसे खींच लाता था। वो लड़की वहीं बैठी होती, खामोश, जमीन पर नजरें जमाए हुए, जैसे उसका दुनिया से कोई ताल्लुक ही न हो। अयान ने आहिस्ता से करीब आकर कहा, तुम हर रोज यहाँ क्यों होती हो? लड़की ने बगैर नजरें उठाए जवाब दिया, जहां मेरी जरूरत कम हो मैं वहीं रहती हूं। ये जवाब अयान के दिल में उतर गया। अब ये एक मामूल बन चुका था। अयान हर रोज आता, कभी कुछ खाने को लेकर, कभी सिर्फ बात करने के लिए, और वो लड़की हर बार कम अल्फाज में ऐसी बात कह देती जो अयान को अंदर तक हिला देती। वो न हंसती थी ज्यादा, न शिकवा करती थी, बस खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती थी। और यही खामोशी अयान को उसके करीब कर रही थी। एक दिन जब हवा में हल्की सी खनकी थी और सूरज डूबने के करीब था, अयान उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में पहली बार संजीदगी नहीं बल्कि एहसास था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम आम नहीं हो। फिर वो थोड़ा रुका और कहा, अगर मैं तुम्हें इस जिंदगी से निकालकर अपने साथ ले जाऊं, जहां इज्जत हो, सुकून हो, तो क्या तुम आओगी? लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बहुत आहिस्ता कहा, मैं वो नहीं चाहती जो आंखों को अच्छा लगे, मैं वो चाहती हूं जो दिल को सुकून दे। ये जुमला अयान के दिल में आखिरी महर साबित हुआ। उसी रात अयान वापस महल पहुंचा। वो बेचैन था, उसका दिल किसी फैसले के बोझ तले था। आगे जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। उसने अपने बाप सुल्तान जफर के सामने खड़े होकर कहा, मैं इसी लड़की से निकाह करूंगा। महल में खामोशी छा गई। फिर अचानक शोर उठा। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या कह रहा है? एक भकारन, शहजादे की बीवी, ये तो सल्तनत की तौहीन है। आवाजें बुलंद होती गईं, महल का सुकून टूट गया। मगर अयान खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में न खौफ था न शक, बस यकीन था। सुल्तान जफर ने कुछ देर खामोशी से अपने बेटे को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हारा दिल इतना ही पुख्ता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और यूं तकदीर का दरवाजा खुल गया। निकाह के दिन महल एक अजीब कैफियत में था। कुछ लोग खुश नहीं थे, कुछ हैरान थे और कुछ गुस्से में थे। लेकिन अयान सबसे अलग खड़ा उस लड़की को देख रहा था, और वो लड़की अब भी वैसी ही खामोश थी, जैसे उसे दुनिया के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह के बाद महल में सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल चल रहा था। ना कोई गैर मामूली बात, ना कोई अजीब वाकया। वो लड़की भी खामोशी से अपनी जगह रहती, ना ज्यादा बोलती, ना किसी से शिकायत करती। शहजादा अयान भी उसके करीब आता रहता, मगर अभी तक उसकी हकीकत किसी के इल्म में नहीं आई थी। एक रात महल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा थम सी गई, चरागों की लो हल्की होने लगी और आसमान पर बादल बगैर किसी मौसम के जमा होने लगे। इसी वक्त शहजादा अयान अचानक शदीद बीमार हो गया। ना सुबह तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसमें तेज बुखार, सांस लेने में मुश्किल और ऐसी कमजोरी की आंखें खोलना मुश्किल हो गया। पूरे महल में खौफ फैल गया। हकीम बुलाए गए, दुआएं की गईं, मगर बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वो लम्हा रात दोबारा छा गई और इसी वक्त वो लड़की खामोशी से शहजादे के कमरे में आई। वो उसे देखती रही। उसके चेहरे पर पहली बार परेशानी थी। आहिस्ता से उसने हाथ उसके माथे पर रखा और फौरन ही उसका जिस्म लर्ज उठा। जैसे ही उसका हाथ अयान को छुआ, एक जोरदार झटका सा पूरे कमरे में फैल गया। चिराग बुझ गए, हवा दीवानावार चलने लगी और जमीन हिलती महसूस होने लगी। वो लड़की फौरन पीछे हटी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके दिल में कैद वो पुरानी कैद टूटने लगी। वो हुक्म जो उस पर लगाया गया था, जब तक कोई इंसान तुम्हारी असल ताकत को छू ना ले, तुम अपनी हकीकत में वापस नहीं आ सकती। और अब
शहजादा अयान की बीमारी ने वो हद पार कर दी थी जिसने उसकी असल ताकत को मुतहर्रिक कर दिया और उसके जिस्म के गिर्द नीली रोशनी फैलने लगी। जमीन पर मौजूद हर चीज कांपने लगी। उसके फटे कपड़े रोशनी में तहलील होने लगे और उसके बाल हवा में बुलंद हो गए। आंखें चमकदार नीली हो गईं और चेहरा एक ऐसी माफौकुल फितरत खूबसूरती में बदल गया जिसकी मिसाल इंसानियत में नहीं थी। वो अब वो भकारन नहीं रही थी, वो थी जनजादी बदरुल जमाल। उसकी आवाज गूंजी, ये बीमारी तुम्हारी नहीं थी, ये मेरी कैद का आखिरी दरवाजा था और अब मैं आजाद हूं। शहजादा अयान अभी नींद बेहोश था और वो जनजादी अपने असल रूप में खड़ी खामोशी से उसे देख रही थी और पहली बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा जज्बाती सुकून था। शहजादा अयान अभी तक उस गैर मामूली मंजर के सदमे में था। कमरे में फैली हुई नीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी, मगर उस लड़की की मौजूदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब भकारन नहीं थी, वो एक ऐसी हस्ती बन चुकी थी जिसकी आंखों में ताकत भी थी और दर्द भी। शहजादा अयान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या है? तुम तो वही भकारन थी ना जिसे मैंने निकाह किया था। वो लड़की कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से अपनी नजर अयान पर जमाई और एक भारी मगर पुरसुकून आवाज में बोली, जो तुमने देखा वो मेरी असल नहीं थी। अयान हैरान रह गया। फिर तुम कौन हो? जैनजादी ने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा, मैं कोई आम बकारन नहीं थी, मुझ पर एक बहुत ताकतवर जिन ने बद्दुआ की थी। उसकी आवाज में दर्द नुमाया था। उस बद्दुआ की वजह से मेरी तमाम ताकत, मेरा हुस्न और मेरी असल पहचान मुझसे छीन ली गई और मुझे एक ऐसी सूरत में कैद कर दिया गया जिसमें मैं न जीने के काबिल थी न मरने के। वो थोड़ा सा रुकी, फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई और शर्त ये रखी गई थी, मैं तब तक अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आ सकती थी जब तक कोई इंसान मुझे इस हालत में दिल से कबूल न कर ले। अयान खामोश हो गया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीधी खड़ी हुई और उसकी आवाज में अब एक शाहाना वकार था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सिर्फ जैनजादी नहीं हूं। अयान ने चूक कर देखा, मैं कोहे जमाल की शहजादी हूं। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। और बादशाह जमाल मेरे वालिदे मुहतरम हैं। मैं एक ऐसी सल्तनत से ताल्लुक रखती हूं जो इंसानों की नजरों से ओझल है। शहजादा अयान के कदम लड़खड़ा गए। उसने धीमी आवाज में कहा, तो तुमने ये सब क्यों छुपाया? जैनजादी ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि तकदीर ये जांचना चाहती थी कि कौन मुझे मेरी असल के बगैर कबूल करता है। कमरे में खामोशी छा गई। अयान अब उसके सामने खड़ा था और वो जैनजादी अपनी असल शनाख्त के साथ एक ऐसी हकीकत बन चुकी थी जो आम इंसान के तस्वुर से भी बाहर थी। कमरे में छाई हुई खामोशी अब भी कायम थी। दीनी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता दीवारों पर मध्यम हो रही थी और शहजादा अयान अभी तक उस हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। इतने में जैनजादी बदरुल जमाल ने आहिस्ता से अपनी नजरें झुकाईं और फिर एक नर्म मगर दिल में उतर जाने वाली आवाज में बोली, जिस तरह तुम मेरी सच्चाई से मुतासिर हुए थे, मेरी सादगी ने, मेरे खुलूस में और मेरे दिल की पाकीज़गी ने तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया। वो थोड़ी देर रुकी और फिर उसकी आवाज मजीद नर्म हो गई। इसी तरह तुम्हारी वही सच्चाई, तुम्हारी वही नजर जो जाहिरी हुस्न से आगे देखती है, उसने मुझे भी तुम्हारा दीवाना बना दिया है। जैनजादी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में पहली बार एक इंसानी जज्बात की चमक नजर आई। वो आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें सिर्फ निकाह में कबूल नहीं किया अयान, बल्कि मैंने तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से कबूल किया है। उसकी आवाज में अब कोई जादुई सख्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नरमी थी जो सीधा दिल को छू रही थी। तुमने मुझे इस हाल में देखा जब मैं सब कुछ खो चुकी थी, न सल्तनत, न पहचान, न ताकत, लेकिन तुमने फिर भी मुझे ठुकरा नहीं दिया। शहजादा अयान खामोश खड़ा उसे देख रहा था। उसके दिल में बेशुमार सवाल थे, मगर उस लम्हे कोई लफ्ज उसके होंठों तक नहीं आ रहा था। और जैनजादी अब उसके सामने सिर्फ एक माफौक अल फितरत हस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दिल थी
जो पहली बार किसी के लिए धड़क रहा था। कमरे में नीली रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ खामोशी थी और दो दिलों की धड़कन और तकदीर आहिस्ता आहिस्ता अपना अगला बाब लिख रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हाथों से निकलता गया और वो लम्हे जो कभी एक सवाल थे अब एक खूबसूरत हकीकत में बदलने लगे। शहजादा अयान और जैनजादी बदरुल जमाल की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हो चुका था। अब वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के हमसफर नहीं थे बल्कि दिल के भी साथी बन चुके थे। महल की फजा बदल चुकी थी। जहां पहले खामोशी और सियासत हुआ करती थी अब वहां एक अजीब सा सुकून और मोहब्बत महसूस होने लगी थी। अयान अब हर फैसले में बदरुल जमाल की राय लेता था और बदरुल जमाल भी उसकी सोच को समझने लगी थी। वो दोनों अक्सर महल के बागात में बैठते, खामोशी से एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। ना ज्यादा अल्फाज होते ना शोर, बस दिलों की एक खामोश गुफ्तगू जारी रहती और यही खामोशी उनकी मोहब्बत को मजबूत कर रही थी। इसी दौरान एक दिन अचानक सल्तनत पर गम का साया छा गया। सुल्तान सुलेमान उम्र की आखिरी हद तक पहुंच चुके थे और फिर एक दिन वो उस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे महल में कहराम मच गया, दरबार सोग में डूब गया और हर आंख अश्कबार थी। सुल्तान की वफात के बाद कवानीन के मुताबिक तख्त शहजादा अयान के हवाले कर दिया गया। अब वो सिर्फ शहजादा नहीं था बल्कि एक अजीम सल्तनत का नया बादशाह बन चुका था। बादशाह अयान उसकी आंखों में अब जवानी के ख्वाब नहीं थे बल्कि जिम्मेदारी की रोशनी थी। बदरुल जमाल अब सिर्फ एक रफीक नहीं थी बल्कि उसकी ताकत का एक पोशीदा हिस्सा बन चुकी थी। जब भी सल्तनत पर कोई खतरा आता या कोई बगावत उठती, अजीब वाकयात रूनुमा होते। दुश्मन की फौजें रास्ते में ही कमजोर पड़ जाते, रियासतें बगैर जंग के झुकने लगते। अब हर नया दिन एक नई खबर लेकर आता। बादशाह अयान ने फला सल्तनत को फतह कर लिया। बगैर खून खराबे के एक और रियासत झुक गई। अरब के दूर दराज कबीले भी उसके ताबा हो गए। लोग हैरान थे, कुछ कहते ये उसकी हिकमत है और कुछ सरगोशी करते ये उसके साथ मौजूद किसी गैबी ताकत का असर है। हकीकत सिर्फ एक थी, बदरुल जमाल की मौजूदगी। वो जहां होती वहां तकदीर खुद रास्ता बदल देती। लेकिन वो कभी अपनी ताकत का गुरूर नहीं करती थी और अयान भी उसे सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी दुआ समझता था। अब अयान की जिंदगी तीन चीजों पर कायम थी: सल्तनत की जिम्मेदारी, बदरुल जमाल की मोहब्बत और तकदीर की वो गैबी मदद जो उसके साथ थी और वक्त के साथ। ये कहानी एक आम बादशाह की नहीं रही थी बल्कि एक ऐसी सल्तनत की बन गई थी जिसे दुनिया बरकत वाली सल्तनत कहने लगी थी। एक दिन सल्तनत अयान पर अचानक एक बहुत बड़ा और खौफनाक हमला हुआ। आसमान धुएं से भर गया, जमीन लरजने लगी और दुश्मनों की फौजें हर समत से हमला आवर हो गईं। ये जंग पहले की किसी जंग जैसी नहीं थी, ये एक फैसला कुन मार्का था। बादशाह अयान खुद अपनी फौज के साथ मैदान में उतरा। तलवारें टकराईं, खून की नहीं बल्कि तकदीर की जंग शुरू हो गई। आखिरकार अयान की सल्तनत फतह तो हो गई मगर वो खुद शदीद जख्मी हो गया। जंग खत्म होते ही अयान को महल लाया गया। उसके जिस्म में 3 जहरीले तीर पैवस्त थे। उसका सांस टूटने लगा था, आंखों की रोशनी मध्यम हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लगा और आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बदरुल जमाल चीख उठी, आयान। वो उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू थे। इसी लम्हे उसके जिस्म से वही नीली रोशनी फूटी और उसने बुलंद आवाज में पुकारा, मेरे वालिद। कोहे जमाल के बादशाह। एक जोरदार बिजली कुरकी और आसमान फटने जैसा मंजर बन गया और फिर एक अजीम नूर के साथ बदरुल जमाल के वालिद बादशाही जमाल जाहिर हुए। उनके साथ उनका पूरा रूहानी लश्कर भी मौजूद था। वो जमीन पर उतरे और फौरन सूरत हाल को देखा। बादशाह जमाल ने संजीदगी से कहा, यह जख्म आम नहीं, उसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। बदरुल जमाल कांप गई मगर फिर बादशाह जमाल ने कहा, एक ही रास्ता है। अगर तुम अपनी तमाम जादुई ताकत, अपनी शनाख्त, अपनी जिनजादी हैसियत सब कुछ अयान को दे दो तो वो बच सकता है, मगर उसके बाद
तुम एक आम इंसान बन जाओगी। बदरुल जमाल ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने आहिस्ता से अयान के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। दार झटका पूरे महल में फैल गया। नीली रोशनी उसके जिस्म से निकलकर अयान में दाखिल होने लगी। अयान के जिस्म से तीर बाहर निकल गए, जख्म भरने लगे और उसकी सांस वापस आने लगी। मगर इसी लम्हे बदरुल जमाल जमीन पर गिर गई और उसका जिस्म आम इंसान जैसा हो गया। देर बाद अयान ने आंखें खोली। वो फौरन उठा और बोला, बदरुल जमाल। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, मगर अब वो नहीं थी जो कभी नीली रोशनी में चमकती थी। अब वो एक आम इंसान थी। बादशाह जमान ने आहिस्ता से सब हकीकत बताई। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत कुर्बान कर दी है। अब वो एक आम इंसान है। अयान ने बदरुल जमाल को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार उसने ताकत, सल्तनत या जादू के बगैर सिर्फ मोहब्बत को महसूस किया। बदरुल जमाल ने आंखें खोली और आहिस्ता से मुस्कुराई। अब मैं तुम्हारी ताकत नहीं रही। अयान ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब तुम मेरी जिंदगी हो। उस दिन के बाद बादशाह अयान और बदरुल जमान ने एक सादा मगर पुरसुकून जिंदगी शुरू की। न जादू था, न तख्तो ताज का गुरूर, सिर्फ मोहब्बत थी और एक ऐसा रिश्ता जो कुर्बानी से मुकम्मल हुआ था। अल्लाह उन दिलों को कभी नहीं छोड़ता जो सच्चाई, सब्र और कुर्बानी के रास्ते पर चलते हैं, और आखिर में वही देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बराहे करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले।